Good morning, students. I welcome you all to my class in the paper of that is Philosophical Foundations of Education. Myself, Dr. Roli Bai. I shall be taking this class in paper Philosophical Foundations of Education, Unit 1, that is Emerging Trends in Education, and shall be proceeding from the previous class that was there last time that I was doing with you all. We were discussing certain important points on what are the recent trends in education and what we as teachers can do to bring forth the system of education in a more better and prosperous and more useful manner, how we can bring it into force, how economical it can be, how we can bring about education system, हम आने वाले समय में कैसे शिक्षा को और अधिक उपयोगी बना सकते हैं, कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचने में सहायक कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे इनोवेशंस एंड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे शिक्षा के सिस्टम को, कैसे शिक्षा के प्रबंध को हम और ज्यादा अधिक बच्चों तक, बड़ों तक और जो व्यक्ति एडल्ट्स हैं मगर उनको शिक्षित नहीं हैं, कैसे वो हाउस वाइफ्स तक जो और अधिक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, कैसे वो व्यक्ति जिनकी शिक्षा बीच में छूट गई हो उन तक शिक्षा के आधार तक पहुंचाया जा सकता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. The system of education that we were discussing, and there was a slide that I had prepared for you, and we were discussing those points and those factors. So for proceeding on those aspects, I will come back to you for regarding the system of education and how this can be brought about in our system of education. We find that this education system is a very useful pattern, and it can be obviously brought about in a various aspects, and these education system can be brought about in our system education, and these systems are such that we are bound to learn various aspects of education. These things can be proceeded in such a manner where technology can be useful, जहाँ तकनीक को हम नए तरीके से, नए माध्यम से हम उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसी स्लाइड्स के पर्टेनिंग आई शैल बी डिस्कसिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स. जिन चीजों पे हम बात करेंगे आज वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, regarding system of education, bringing forth the online system of education and various aspects. जो तकनीकी माध्यम हैं जिनसे शिक्षा हमें बहुत कुछ सीखने पे मजबूर करती है, बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है, and system of education is such that we receive different aspects of learning, teaching, but how impactful it is going to be, क्या impact उसका हमारे पर पड़ेगा, बच्चे किस तरीके से सीखेंगे कि वो उनकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा इम्पैक्ट पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि हम बच्चों को नए तकनीक के साथ, हम टेक्नोलॉजी के संग में जब अगर कोई बेनिफिट हो सकता है, यदि कोई चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका प्रयोग न करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और हमें ये प्रयास करने की जरूरत है कि हम उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकें. So coming to different aspects, I would like you to see that how we can bring that changes in the possible system of learning. Now, this is simply the system where we believe and that learning can be released, and that learning is, you can say, bringing forth different aspects of teaching and different aspects of learning, and that is due to the technology, due to online classes, due to नए नए सिस्टम, नई नई तकनीकें, नए नए व्यवहार जिससे हम चेंजेस को लाते हैं, जिसके प्रकार उनको हम सामने लाते हैं. नाउ ये चेंजेस अगर इस प्रकार से करते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है और लर्निंग ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है, एंड यू विल फाइंड दैट दिस लर्निंग is naturally in a natural process, ongoing process, और जिससे लर्निंग में इम्पैक्ट भी होता है, बच्चे पर फर्क भी पड़ता है, और बच्चे ज्यादा अधिक तरीके से सीखने में समर्थ होते हैं. और इसकी हम बात जब करते हैं, you will find that these aspects will go on changing in our system of education.
So bringing forth this education system, you will find कि जिन चीजों में हम कहते हैं कि इनमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, उसमें चेंजेस अकर करते हैं, और चेंजेस ऐसे अकर करते हैं कि हम समाज में बहुत सारी चीजों को लाने के बाद ये पाते हैं कि व्यक्ति प्रकृति से सीखता है, बालक प्रकृति से सीखता है, प्रकृति के माध्यम से सीखता है, और नई नई तकनीक से सीखता है। और जितना वो स्वयं सीखता है उतना वो ज्यादा रिटेन कर पाता है, ज्यादा इम्पैक्टफुल लर्निंग होती है। और यदि हम उसके व्यक्ति के मस्तिष्क में, बच्चे के दिमाग में घुसाने का प्रयत्न करते हैं फोर्सफुली, तो वो लर्निंग केवल कुछ समय के लिए होती है और अधिक समय तक नहीं चल पाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें लर्निंग को ज्यादा इम्पैक्टफुल बना लेने की कोशिश करनी चाहिए। Now, coming back to the point of learning being more impactful, it is necessary that this learning returns to its normal form, and children learn in a form where they will learn and at the same time believe in the different aspects of learning. Children learn but they are not able to retain. ये कमिटीज में अक्सर बोला जाता है कि हम उसको कैसे इम्पैक्ट करें, but finally when we do learn about different aspects, you will find that these learnings will make us more impactful, more learning is retained, and children have a greater impact. Now, coming back to the point of where we were studying about different impacts on education system, the learning does not impact simply because of what is being taught, but also about what they are not taught. तो इस केस में हम इस चीज को समझ पाते हैं कि कैसे ये लर्निंग ज्यादा इम्पैक्टफुल बन सकती है। और नेचुरली जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इस केस में। और हम बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे आप, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है वैसे ही टीचर्स को के लिए भी ये बताया जाता है कि आप कैसे इम्पोर्टेंस बच्चों को दें, बच्चे कैसे पिवट रहे, बच्चे कैसे सेंटर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहे, और उसके साथ साथ में लर्निंग को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया जा सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लर्निंग इज नेचुरली नॉट in a very impactful way, and the close attention is paid to the students' learning capability, and students need to learn in a much more impactful manner. और ये जो वर्चुअल और ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस होता है, इसके तहत बच्चे सीख पाते हैं कि कैसे लर्निंग को ज्यादा कोर सब्जेक्ट्स हो, या उनके सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स हो, या उनकी लर्निंग किसी और करिकुलम या पाठ्यक्रम के पाठचर्या के माध्यम से हो, जिसमें उनकी co-curricular activities, उनका complete development personality हो सके, और ये जो different activities हैं जिसमें वो games के माध्यम से लर्निंग कर सके। और ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो ज्यादातर बच्चों के लिए उस समय के लिए होते हैं जब व्यक्ति या तो पढ़ाई पूरी करते करते रुक गया हो किसी कारण से, या आप कह सकते हैं मतलब बीच में उसकी नौकरी शुरू हो गई और पढ़ाई छूट गई, या किन्हीं कारणों से परिवार के संबंध में कोई ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से उसकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाई, और इट मे बी सम अदर रीजन। सो नेचुरली दैट कंटिन्यूज इन दैट प्रोसेस। और जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें आप फेस टू फेस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, एंड लेट मी टेल यू, I'm really looking forward to meeting you all soon in the classrooms other than these online classes, because naturally जब आप one to one basis पे class में सामने होते हैं, you enjoy, you learn, you are able to form a good rapport, you are able to understand and see, have a more collaborative learning. और ये जो लर्निंग होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूट लर्निंग, जिसको हम कहेंगे फॉर स्टूडेंट्स हु आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस। नाउ ये जो लर्निंग की बात हम करते हैं, दैट इज रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इसके पर्टेनिंग आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज प्लान की जाती हैं वो इस प्रकार से की जाती है कि बहुत ही डाइवर्स फॉर्म में जो लर्निंग स्टाइल्स किए जा रहे हैं, उसमें बच्चे स्कूल के दौरान, स्कूल के बाद में जो उनकी एबिलिटीज है उसमें वो फुल टाइम कन्वेंशनल क्लासरूम से अधिक महत्वपूर्ण कर सके।
So I'm sure you must be able to understand and be able to grasp the fact that this blended learning is what we are all aiming at. जब तक बैलेंस्ड सोसाइटी नहीं बात करेंगे, जब तक हम उस समाज की बात नहीं करेंगे जो हमें आगे ले जाने के लिए हमें ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेने पे मजबूर करता है. Then we come to the online learning, which is a very potential, as they say. And when we talk about the potential to improve the educational productivity by accelerating the rate of learning, you can say that is the productivity of accelerating the rate of learning, taking advantage of learning time outcomes of school hours, reducing the cost of instructional material, और बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन जो टीचर का टाइम. सी क्या है कि हमारे पास हमारी कंट्री में बहुत रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है. एक एपिटोम, एक ग्रेट नॉलेज सेंटर, एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह से हमारे पास ज्ञान के स्रोत हैं, मगर वो ज्ञान के स्रोत बच्चों तक कैसे पहुंचे, वो इम्पैक्ट कैसे छोड़े, ये इम्पोर्टेंस रखता है. So you can say that it is basically relating to different aspects and different learning things, capabilities, और इसी के दौरान आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें कि कॉस्ट की, हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं कि रिसोर्सेज भी हैं और इंक्लिनेशन भी है, नए लॉज भी हैं, मगर उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनको यूटिलाइजेशन किया जाए बेहतर से बेहतर, और वो टीचर टाइमिंग को भी यूटिलाइज किया जा सके. So teaching learning process is not simply relating to what is being done for what is, मगर उसको कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सके. Then we come to the open education resources. जैसे आप सुनते हैं कि IGNOU है, distance education courses हैं, आपने Annamalai Uni. I'm sure, I'm very sure that many of you, those who are listening to my lecture today, must have tried, must have searched on net कि कहाँ पे B.Ed जो है वो ऑनलाइन हो सकता है, कहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हो सकता है. क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पास में हाउसवाइफ्स हैं, या कुछ और कोर्स परस्यू कर रहे हैं. सिंस ओपन एजुकेशन सिस्टम में अदर देन व्हाट दैट इज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बीइंग ऑन नॉर्मल कोर्सेज, जो रेगुलर कोर्सेज हैं, उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं. दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इट इज नॉट वेरी इजी, वेरी सिंपल इन टर्म्स कि अगर आप हर कोर्स सोचें कि आप केवल ऑनलाइन कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल कोर्स, अगर कोई डॉक्टर बनने जा रहा है और अगर वो ऑनलाइन कोर्स करता है, क्या वो संभव है? नहीं. उसकी इंटर्नशिप कैसे होगी? क्या अगर केवल पेपर वर्क पे हो जाए, केवल ऑनलाइन पे हो जाए, केवल डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हो, तो क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं. हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे डॉक्टर की ट्रीटमेंट में आने के लिए तैयार होंगे जो जिस डॉक्टर ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करी हो? आई एम श्योर नॉट. अगर हम में से टीचर्स ऐसे हों, आप ऐसे टीचर बने जो केवल ऑनलाइन आपने एजुकेशन ग्रहण करी होगी, तो कौन आपसे पढ़ना चाहेगा? आई एम श्योर नॉट. क्यों? क्योंकि मैदान जंग में जब तक आप उतरेंगे नहीं, जब तक आप क्लास में जाके सामने खड़े नहीं होंगे, जब तक आपकी आमने सामने कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखाई नहीं देगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे ब्लैक बोर्ड में रिएक्ट करना है, हाउ यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, दैट ऑनलाइन टीचिंग विल नॉट सफाइस. सो इट इज फॉर द recent trends are for the betterment. The purpose behind is to achieve the maximum result. The purpose is most certainly not just to attain education, just to give newness, novelty to something. नयापन अच्छा है, नॉवेल्टी आना, डिफरेंट चीजों का सेटअप करना, बेहतरी से बेहतरी लाने का प्रयास करना अच्छा है. इट इज गुड एंड इट शुड बी कंडक्टेड, बट एट द सेम टाइम remember, whatever is old is not necessarily bad, whatever is new is not necessarily good, and there should be effort which should be made to bring forth changes in the system of education. तो हम वो टीचर बने जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो लॉयर हो, सबके लिए उतना ही गुणकारी है, उतना ही इफेक्टिव है. So I'm quite sure you must be understanding this point of mine.
And now I would like to come to the next slide, which is regarding the digital resources, how well they can be utilized. That is using of digital resources in a variety of ways to support teaching and learning. Electronic grade, see, they should be helping as a supplement. They should not be just taking the place of that. For example, online teaching is there to make things better and more smooth and flow in a normal course of system. It is not with the purpose of bringing system in such a manner that the electronic grade and the books and the digital portfolios just for bringing confusion, just for the heck of it, just for the sake of fashion. No. Learning of games, bringing real-time feedback for teachers and students' performance. They are the bringing of new technology, new power, utilizing it for the maximum resources. The recent trends and development in education means that there is a salient role of education in effective system of growing political and social economic system. Challenges in society with the fast development and many variations, conflicting trends which can be noticed in the education system of India. और हमारे भारत में बहुत सारा जो एरिया है, बहुत सारी जो ट्रेंड्स हैं, आप देखते हैं कि गांव में है, कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षा ही नहीं पा पाते हैं. तो उनके लिए ये कहना कि शिक्षा एक नए तरीके से केवल ऑनलाइन मिलेगी, केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलेगी, केवल वेब के माध्यम से, इंटरनेट से, it will be cruel, it will be sad because they cannot avail that facility totally. तो हमें पहले तो इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, हमें और फैसिलिटेट करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी को हर गांव, हर प्रदेश, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है. उसके बाद हम नए ट्रेंड्स, नए डेवलपमेंट को एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात कर सकते हैं. Then we come to the fact that regarding the cost effectiveness of the education system. और इसकी जब हम बात करते हैं तो ये ट्रेंड की बात करते हैं कि कितना फास्ट, कितना whether it is expensive, whether it is cheap in system, whether education system quality में हमें कितनी आसानी से हम ला सकते हैं. And when we talk about that system of education, आप पाएंगे कि ये system of education बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पहुंच सकता है यदि हम उसको अफोर्डेबल बना देते हैं. तो अफोर्ड करने का मतलब यहाँ पे ये कि क्योंकि हमारी आज बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी में है, जिनके पास खाने को नहीं है, और हम उनसे टेक्नोलॉजी की बात करें, उनसे कहें कि आप नेट का पैकेज लगाइए, हम कहाँ तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करते हैं. So it is fruitful, it is of purpose only when that system of education can be attained. Then next we come to the trend that can be traced to methodology of education with lots of information to gather and more books to study. Now students are found which are their burden, like I told you in the last class. Yashpal committee was set up to bring forth an education system which is free of all burden, जहाँ पे पढ़ाई बिना burden के हो, study without burden, education without burden, and bringing that into forth requires more of technology, more of interest. तो हमें टीचर्स को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा जहाँ पे वो इंटरेस्ट ले, जहाँ we do not need teachers जो केवल अपना पैसा कमाने का ही जरिया सोचे. अब it was अभी कुछ टाइम पहले सुनने में बहुत सारी जगह पे ये आया कि there have been cases where people did not go into villages for teaching, जहाँ पे उनकी नौकरी लगी सरकारी और वो जाते नहीं थे पढ़ाने के लिए, और दूसरे लोगों को अपॉइंट कर देते थे जहाँ पे वो उनको पार्शियल पेमेंट देकर उनको गांव में भेज देते थे और वो स्वयं जाते ही नहीं थे. तो क्या ये विडंबना नहीं है हमारे देश की, जहाँ सब कुछ होते हुए नौकरी क्या हम केवल इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको नौकरी सरकारी मिले जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए प्रयास न करें, केवल पैसा आए. ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ आर देयर, राइट्स भी हैं, लेकिन राइट के साथ में ड्यूटीज हैं. राइट्स हम सब चाहते हैं मगर ड्यूटीज नहीं निभाना चाहते.
ये बहुत ही तकलीफदेह बात है और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात हम करते हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उन बच्चों तक नॉलेज को पहुँचाना, स्टडी मटेरियल पहुँचाना, उनको प्रोवाइड करना सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा जिसमें लर्निंग और ज़्यादा enjoyable हो सके, जिसमें लोग लर्निंग कर सकें. Another education system is that whether it does not provide the system any assurance that they will be getting a job on the completion of their education degree. ये एक और रीजन है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेंगे जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन चूंकि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इस वजह से लोग अपना स्वयं का बिजनेस करने से कतराते हैं, सरकारी नौकरी की चाह में रहते हैं और कई बार नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आती है. एंड सो व्हाट दे डू इज दे आर doing jobs which are not up to their level of education, which is really sad. ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि अगर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है और वो ऑटो चला रहे हैं, वो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता. जब तक किसी दूसरे कार्य की ओर नहीं लग जाते, जब तक उनको कोई दूसरा काम नहीं मिल जाता, दे should continue with whatever education that they are getting into. This is the system of education. Now, जब हम आर्टिकल्स लिखने की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जिसमें लर्निंग बेहतर होती है, what happens? We talk about different aspects, and those aspects are regarding different things in completion of educational degree. केवल जॉब के लिए हम डिग्री नहीं पाना चाहते, केवल एजुकेशन सिस्टम को पाने के लिए, केवल ज्ञान के लिए हम एजुकेशन करते हैं, ऐसा भी नहीं है. आपने मूवीज में देखते होंगे, जो आपकी रीसेंट मूवीज में, when you had studied, must have seen the movie Three Idiots, केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए वो शिक्षा लेते थे. मगर हमारा आप में से ऐसे शायद ही कोई बिरला हो जो केवल ज्ञान के लिए शिक्षा लेता हो. लेकिन केवल जॉब के लिए शिक्षा लेना भी गलत है. एजुकेशन शुड बी फ्रॉम विद इन. शिक्षा का मतलब पूर्ण रूप से शिक्षित होना है, केवल बाह्य रूप से शिक्षित होना नहीं, केवल लिटरेसी नहीं है. हमें शिक्षा जो वास्तविक रूप में सिखाती है वो हमारा पर्पस है. To writing reviews and writing different aspects of learning process. Then the education sector in India has received significant attention from different quarters, like the investors, the policy makers, the media, and it is filled with passion and all the enthusiasm in any one hand and in many anxieties in the other. So आप ये पाएंगे कि जो एजुकेशन सेक्टर है हमारे देश का, वो सिग्निफिकेंट अटेंशन रिसीव कर रहा है, वो उसकी काफी ध्यान में लिया जा रहा है, काफी लोग उस पर तवज्जो दी जा रही है, सरकार दे रही है, आम जनता दे रही है, और एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा मनी लगाया जा रहा है, काफी मनी इन्वेस्ट किया जा रहा है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं. सारे एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकर्स, मीडिया, सब इंटरेस्टेड हैं, सब उसमें एफर्ट कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन that passion, that enthusiasm, and लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी एंजाइटीज हैं जिनको आज भी हम ओवरकम नहीं कर पाए हैं. मगर उसको ओवरकम करने के लिए हमें बहुत एफर्ट करना होगा, प्रयास करना होगा, और हर आम व्यक्ति को करना होगा. केवल हम बहुत सारी चीजें आप ट्रेन होंगे, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, और आप भावी टीचर्स हैं. So it is naturally your role, your process, your effort should be there, where you can bring forth that change in the society which is there. They say, be the change you want to see in society. आप समाज में जो परिवर्तन देखना चाहते हैं, जिस परिवर्तन की आप बात करते हैं, जिस चीज को आप कहते हैं कि अच्छी नहीं है, उसके लिए ये आवश्यक है कि आप इस बात को समझें कि आप वो स्वयं अगर बनना चाहते हैं, तभी आप परिवर्तन को लाने में समर्थ होंगे. Now, next we come to the fact of internalization of the education process. Now, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्वालिटी की हम बात करते हैं, जो क्वांटिटी की बात करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, और देना भी चाहिए. See, we are a country with a huge amount of population. तो सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि इतनी
इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को, जहाँ पे इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, उन तक शिक्षा को पहुंचाना, घर घर पहुंचाना इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रयास किया जाना। दूसरी बात, उस क्वालिटी को मेंटेन करना, ये दूसरा मुद्दा है, मगर दोनों ही अहमियत रखते हैं। जब हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स जो हम हमारे यहाँ शिक्षा, चाहे वो गांव में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, सिटी में हो, कंट्री में हो, उस शिक्षा को इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, एक एजुकेशनल प्रोसेस के लिए बनाने के लिए, चाहे वो क्वालिटी प्रोफेशनल लेवल की हो, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट की हो, वोकेशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी टेकन इनटू अकाउंट। हम केवल कुछ लोगों की शिक्षा की बात नहीं कर सकते, केवल अमीर व्यक्ति की, केवल ऊपर हायर क्लास की, केवल मेजॉरिटी की, केवल माइनॉरिटी की, केवल किसी पर्टिकुलर रिलीजन की, केवल हायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की नहीं। Everyone, see, India is a democratic country. India is a country of many religions, many languages, many you can say different types of people stay here, live here, different kind of food they eat. Everything is different. There is so much of universal differentiation, diversity, but yet we are one. We have to understand that this increase in the adoption of technologies can only be possible when we keep into mind the consideration of quality as well as quantity. जब हम जेंडर में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जब हम गरीब अमीर में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जब किसी रिलीजन में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और सिटी की बात हम नहीं करेंगे, सेंटर और स्टेट की बात नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंशिएशन की बात नहीं। सी, पहला सबसे अहम मुद्दा सबको एक मानना है, और वहीं पे इंक्रीज इन नीड फॉर प्रोफेशनल टैलेंट की जब हम बात करते हैं, वी हैव टू रियलाइज दैट दिस प्रोफेशनल टैलेंट शुड बी द नीड ऑफ द आवर. We cannot just take into account just for someone who is not existing in the kind of real sense. Now, national policy on education talks about which was formulated by the government of India to promote to promote different aspects of learning, where the government of India promoted education amongst India's people. The policy covers elementary education. Now this we talk about in different aspects, and we learn कि ये national policy of education क्या थी। 1968 में आई और 1986 में भी ये आई। Now this national policy on education, which was formulated by Government of India to promote education amongst India's people, this policy covers elementary education. अलग अलग लेवल्स पे, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, then the level for professional education, vocational education, we find different levels पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट पॉलिसीज ले करी है। इसमें डिफरेंट कॉलेज लेवल की भी बात करी गई है और एलिमेंट्री एजुकेशन की, रूरल एरियाज की और अर्बन एरियाज की। तो जो पहली नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, which was promulgated in 1968 by the by the former Prime Minister in Indira Gandhi. Then second it came by Prime Minister Rajiv Gandhi's time, and here these policy was, the purpose was three language formula. This three language formula means that is the mother tongue, then the other than the mother tongue, it talks about the language which is being spoken by the state, and then Hindi. तो हमारी जो प्रांत की भाषा है, जो हमारी इंग्लिश भाषा है, जो हमारी these all three languages have been talked about. क्योंकि आप मानिए गुजरात में रहते हैं, आप गुजराती भाषा बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी आपके लिए है, तो तीनों लैंग्वेजेस की बात करी गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मॉडिफिकेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ 1986 में, और यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया गया, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन पे खास जोर दिया गया। Then the essence and the role of education has been talked about in this, और ये समयांतर से चले आ रहे डिफरेंट जो उसकी खामियां थी, जो कमियां थी, उनको ओवरलुक न करते हुए और आगे अधिक चीजों पर, मुद्दों पर नजर डाली गई है।
So we find that the education has been for equality, for equity, for democracy, for they've talked about different aspects of women equality, for scheduled caste, for minorities. ये सारी चीजों के सारे मुद्दों पर जब डिस्कशन किया गया तो पाया गया कि जहां जहां कमियां थी in सब, see it is the when we talk about recent trends, तो recent trends में ये सारी चीजें आती हैं जो हमारे आने वाले मुद्दों को या हमें बेहतरी की तरफ या हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन में चेंजेस की बात करती हैं. You will find they also talked about the handicapped, the adult education, then बहुत सारे हैं जिनको हैंडीकैप थे उनको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करने की बात करी गई. देन इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आजकल रीसेंट टाइम्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है. एंड व्हाट इज दैट रिगार्डिंग इट? इंक्लूसिव एजुकेशन से मतलब है हम सारी उन मुद्दों को, उन लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जो फिजिकली एंड मेंटली उतने साउंड हेल्थ के नहीं है. नाउ एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सो दोज नेचुरली अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एडल्ट एजुकेशन में फायदा होता है. या दोज हु आर हैंडीकैप्ड उनको भी शिक्षा मिल पाती है. जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो रोज कॉलेज स्कूल नहीं जा सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनको ऑनलाइन की फैसिलिटी मिल जाती है तो दे एक्चुअली दे लर्न, दे आर एबल टू लर्न, दे आर एबल टू ग्रास्प, दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम सिटिंग एट होम. और वहां से ही वो बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरा आम व्यक्ति प्राप्त कर रहा है. सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस and early childhood care and education, ECCE, elementary education, child-centered approach, school facilities, and then we talk about school facilities regarding बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें बच्चों को नहीं उस तरह से एजुकेशन सिस्टम नहीं हो पाता है. So they talked about how to bring into system of education. Now, you can say that ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से स्कूल सिस्टम लाएंगे, नॉर्मलसी आएगी एजुकेशन में, हाउ सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन बी चेंज्ड. सो ये सिस्टम में चेंज लाने की बात, टेक्नोलॉजी को लाने की बात, ये बहुत ही चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है. बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिशनल स्कूल्स चले आ रहे हैं उनमें बदलाव लाने की बात है. जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, कई जगहों पे मोबाइल हॉस्पिटल्स की बात हुई, कई जगहों पे मोबाइल स्कूलिंग की बात हुई. तो ये कैसे संभव है? ये जब हम गवर्नमेंट ने ये मुद्दा उठाया कि किस प्रकार से वैन्स में टीचर्स को लेके, जो गांव थे कुछ हमारा, जैसे आप जानते हैं कंट्री ऐसी है कि जहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, कहीं जंगल है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है. तो उन केसेस में बहुत मीलों तक कोई सड़क नहीं, कहीं पे सड़कें हैं तो कहीं आबादी उतनी नहीं, जहाँ आबादी है वहां से बच्चे पढ़ने के लिए रोज आ नहीं सकते. तो वहां पे इंतजाम किए गए जिसमें कि टीचर्स का प्रोविजन किया गया कि वो जाकर के वहां बच्चों को शिक्षा देने में समर्थ रहे. अलग अलग विषयों की अलग अलग ट्रेन्ड टीचर्स का इंतजाम किया गया. सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग स्कूल to the villages and to the child itself. घर तक विद्यालय लाने का प्रयास. So normal education was achieved. Then we come to the pace setting of the schools, that is a vocationalization. हर विद्यालय में एक अपना तरीका होता है, एक अपना सेट पैटर्न होता है, एक अपनी पेस होती है कि जिस स्पीड से वहां पढ़ाया जा रहा है. लेकिन जब आप ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, आप उसी वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपके टाइमिंग्स फर्क हो सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग में असाइनमेंट सबमिट होते हैं. सो द पेस इज डिफरेंट एंड ईच चाइल्ड इज एबल टू फॉलो इट इन अ डिफरेंट पैटर्न. और जहां तक वोकेशनलाइजेशन, वी टॉक अबाउट वोकेशनलाइजेशन, यू विल रियलाइज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that the child should be able to stand on his own feet. So to be able to earn livelihood, to be able to live in a manner for oneself as well as for the family is exceptionally important. So they talk about vocationalization and higher education. हायर एजुकेशन तब तक इफेक्टिव होती है जब वो आगे फ्रूटफुल साबित हो. जैसे कि क्या होता है कि आप सोचिए कि केवल डिग्रीज एक्यूमुलेट कर ली कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने बहुत सारी डिग्रीज हो, लेकिन तब भी वो अपने आप को नौकरी नहीं कर पा रहा, या उसको अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा, या उसको जॉब नहीं मिल पाई. उसकी शिक्षा तो बहुत है मगर उस प्रकार से नहीं है कि वो विद्या ग्रहण करने के बाद में
अपने जीवन यापन कर सके या अपने परिवार का पालन पोषण कर सके. So obviously that is of no use. So education has to be such that it is going to leave a more fruitful and more impact. Then we come to the rural universities. There are many rural universities which are being established in recent times. बहुत ही inner areas में, remote areas में, जहाँ पे कोई विद्यालय higher education नहीं provide की गई थी, वहाँ पे rural universities are being established. And this is a new trend which is being opted, and like I told you, how to bring about innovation, research and development. आपने अभी recently सुना होगा, हमारी कंट्री में ये बोला गया कि हम चाइना से सब चीजें नहीं लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम आत्मनिर्भर बने. उसका पर्पस है कि इनोवेशन करें, नई तकनीक. हमारे पास, हमारी कंट्री में इतने अच्छे ब्रेन्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है. स्टिल व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू यूज इट ऑल, टू एक्सप्लॉइट इट, टू एक्सप्लोर इट? The research is not being conducted. The students are running away to different foreign countries. We have to make use of it, the research, the development, the innovation, and bring forth that learning ability. लेकिन सबसे अहम बात, एक शिक्षा जो वैल्यू एजुकेशन है, मूल्यों को इम्बाइब करना, वैल्यूड एजुकेशन को प्रोवाइड करना, एक सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, और ये जरूर ध्यान में रखी जानी चाहिए. So it is otherwise the students will not be able to learn or grasp. It is our responsibility that we provide good education, value-based education, education which is going to give them good character, frame good learning, good ability, and to prove good citizens of the country. तो जो ओपन यूनिवर्सिटीज हो, जो डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हो, उन सब में इस प्रकार की शिक्षा की जो आने वाले ऐसे ट्रेंड्स हो, इमर्जिंग एजुकेशन ट्रेंड्स हो, जहाँ पे शिक्षा भी मिले, मूल्यों पर आधारित शिक्षा मिले, जहाँ इनोवेशन हो, जहाँ रिसर्च सेंटर्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो, डिफरेंट वोकेशनलाइज्ड एजुकेशन हो, जो उनको आगे जीवन में आधार पे ला सके. Then books and libraries to be available for students, जहाँ पे बच्चों को encyclopedias and books and libraries, आजकल आप देखते हैं बहुत सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज आर अवेलेबल. तो उसके इस प्रकार की लाइब्रेरीज हो जो बच्चों तक पहुंच सके, जहां तक बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज की बात है, उनका दिमाग विकसित हो सके, वो बेहतर से बेहतर हमारे पास्ट को जान सके और आज को समझ सके, जिसके आधार पे उनका भविष्य टिका है और हमारे देश का भविष्य टिका है. So the media and the education technology should frame in such a manner that they are able to understand the education and the environment. Science education, we should report sports and physical education. जो साइंस और आर्ट्स दोनों को इम्पोर्टेंस दे, जहाँ पे आज के समय की इमर्जिंग ट्रेंड्स ऐसे हो जो फिजिकल डेवलपमेंट पे इम्पोर्टेंस दे. You must have heard that Swami Vivekanand talked about the physical development. They talked about अगर हम physically sound नहीं होंगे, अगर हम mentally sound नहीं होंगे, we cannot move ahead in life. So they have talked about education for the role of the youth. तो जो youth है हमारा, वो किस तरीके से सीखे, किस तरीके से learn करे कि उसकी learning ज़्यादा effective. लेकिन हमारा मूल्यांकन का process क्या हो, केवल किताबों को जज ना करे, केवल एक इम्तिहान पर ना जजमेंट हो, पूरे साल के परफॉर्मेंस पर, पूरे लर्निंग एबिलिटी को, वो मूल्यांकन बेहतर से बेहतर हो. लेकिन टीचर एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिसमें कि आप कोर्स करें टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज की, सो ये नीड कभी खत्म नहीं हो सकती. टीचर की आवश्यकता कभी खत्म नहीं हो सकती, दौर चाहे कोई भी हो, समय चाहे कैसा भी हो, मगर टीचर की आवश्यकता, टीचर की एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and it shall always be of use. Then we come to the national level, state level, district and local level. इसका अर्थ ये है कि हम जब हम कहते हैं कि national level क्या है, तो it simply means देश के हित में, देश के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, लोकल लेवल पर, हर प्रत्येक लेवल पर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनको ध्यान में रखना है. चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल बॉडीज हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो,
The voluntary agencies हो, non-government organizations हो, aided institutions हो, each should remember their duty, their responsibility and help in the process. तो जो education commissions होते हैं, all those should effectively work towards it and ultimately reach the goal of achieving the best possible technology to serve the mankind. तो बच्चे जो सीखते हैं वो बेहतर से बेहतर सीख सकें, अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकें, जिनकी लर्निंग नहीं हो पाई है उनकी भी लर्निंग हो सके, गवर्नमेंट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, लोकल और स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, एज वेल एज वॉलंटरी एंड एडेड इंस्टीट्यूशन, सबका योगदान हो सके और उसके रिसोर्सेज का बेस्ट रियलाइजेशन हो सके, चीप हो, अफोर्डेबल हो और आने वाले समय के लिए उपयोगी हो. तो जो कमीशंस हैं, कमीशंस कमिटीज की कमी नहीं है हमारे देश में. कोई भी चीज में यू कैन नॉट से दैट दे हैव लैक्ड बिहाइंड एट एनी स्टेज, but at the same time you will find that many a times they have not been fully realized or utilized. So the purpose lies not to just make laws but to utilize them, to get proper feedback, to have a good follow up and to utilize it to the maximum. So dear students, I would like to say that there are various agencies, various organizations which have led to them. So the trends in education should change the principally towards the advancement and application of knowledge. Changing is in trends, education is necessary for the creation, diffusion and application of knowledge, also leading to such a manner that these will lead us to the different aspects of education, and they will bring forth not only the changes which are for the nation but for the city, for the states, and be further marginalized in a highly competitive world economy because of the poor quality of the education system. The nation has a responsibility to put into place a framework for the education institutions to be more innovative and responsible to the needs of a globally competitive knowledge economy and the changing labor markets and everywhere. तो चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो टीचिंग लाइन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो किसी पर्सनल प्राइवेट लेवल हो, हर जगह हर एक aspect पे it is required that the education system bring forth the new emerging trends and utilize it to the maximum. So I would like to say that we have to accept different aspects and realize that these are the changing times and we cannot afford to let go of any aspects. I would now like to end my class and hope that you have followed this class regarding new emerging trends in education and have followed the class. In case there is any problem, you may post a question to me and I will surely answer. In coming times to see, hoping to see you all soon. And these emerging new trends, we are utilizing technology, no doubt, but yet it can never replace the face-to-face teacher-student interaction. So thank you, students.